जी मैनू मेरी 2018 ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ ਤੇ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਤੇ ਘਿਓ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਘਿਓ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਕਬੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹ ਮੈਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2 ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ 50 ਕਿਲੋ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਪ ਮੈਂ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਕਰਕੇ ਮਿਨੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਊਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਬਸ ਉਹ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਲੰਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਲੰਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੱਸਿਆ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ 90 ਕਿਲੋ ਚੱਕਤਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 18 ਤੋਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ 25 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕੰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕਦਾ ਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੀ ਗੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਨ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹਨੇ ਕੰਨ ਕੁੰਨ ਪੜਵਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹਨੇ ਘਰੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਨੂੰਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਗੋ ਟੈਲੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ आप हमारे यहाँ इंडिया गो टैलेंट में परफॉर्मेंस कर सकते क्योंकि उधर हिंदी बोलते हैं मैं कहा भी हाँ कर सकता हूँ मैडम आप बोलो तो कहते आपने ना एक वीडियो बनाकर हमको अपलोड करनी है मैं कहा ठीक है मैडम मैं कहा कहती आपने बोलना है कि मेरा नाम अमरीक सिंह है मैं लुधियाना पंजाब से हूँ और मैंने अपने राइट हैंड कान से 92 किलो वेट उठाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो ये वीडियो मैं इंडिया गो टैलेंट सीजन 11 के लिए भेज रहा हूँ इदा करके उन्होंने मेरे तो वीडियो ले ली ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਟ ਚੱਕੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੱਜਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੋ ਟੈਲੈਂਟ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਵਗੈਰਾ ਆਏਗੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਐਡ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਐਡ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਯੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੋਚ ਤੇ ਅੱਛੀ ਨਿਗਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੋਚ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜੁੜੋ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਓ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਲਿਆਦ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਕੜਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈलेंज कर सकते हो जो कुछ मर्जी कर सकते हो। मेरा नाम अमरीक सिंह है और मुझे प्यार से मिक्का बुलाते हैं। आपने जो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कब और कैसे बनाया? ये मैंने 2025 में बनाया है मई महीने में बनाया था तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया तो नहीं तो ये मई में बन जाना था। किस कैटेगरी में? ये टाइलैंड में आता है ये मैंने अपने राइट हैंड कान से 84,540
इतना वेट उठाया है। जो पहले का रिकॉर्ड था वो 82.600 था। तो गिनीज वाले ने तकरीबन तकरीबन 85 ही बोला मुझे मेल की तरफ से कि आपने 85 उठाया है। तो कब से आप ये प्रैक्टिस कर रहे थे, कब नहीं उठाया? ये मैं 2018 में शुरू कर दिया था बनाना। तो 18 में मतलब शुरू करा था, 18 से लेके 2025 के बीच बीच मुझे मतलब काफ़ी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया। तो उसके बीच एक दो बार मेरे ब्लड आ गया था कान में, तो उसकी वजह से मैं रुक गया था थोड़ा सा। तो पर जैसे कहते हैं जो पंजाबी होते हैं वो दक्कड़ होते हैं। तो फिर मैंने सोचा था भी गिनीज तो बनाना ही बनाना है मैंने, उसमें चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए मैं मेरे को। तो मतलब 2025 में ये मैंने बना दिया। तो जो डाइट है मेरी, गेहूँ ज़्यादा पीता हूँ। गेहूँ देसी घी मैं ज़्यादा पीता हूँ। तो कम से कम एक महीने में 5 किलो मैं अपना देसी घी अपने ऊपर लगा देता हूँ। तो कहने का मतलब देसी घी मेरा मेन है। तो उठाते उठाते मैं अपनी डाइट का भी पूरा ध्यान ध्यान रखता हूँ। और भगवान का भी मुझे गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। तो भगवान का जो आशीर्वाद है वो हमेशा मेरे साथ है। तो सबसे जो बड़ी बात है, भगवान की वजह से ही मैं रिकॉर्ड बना पा रहा हूँ। हमारे जो गांव है पुन्नू मजारा, जिला नवांशहर, वहाँ हमारी जद्दी जगह है, गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरुना साहब गुरुद्वारा उनका नाम है गुरुद्वारे का। तो वो गुरुना साहब गुरुद्वारे की बाबा जी की मेरे ऊपर पूरी पूरी फुल बटा फुल मेहर है। वो जब भी मैं वेट उठाता हूँ उनको मैं याद करता हूँ, तो मुझे नहीं पता लगता मैंने इतना वेट उठा लिया। तो कहने का मतलब जो जो मैंने ये वेट उठाया है जितना भी, इसका सारा क्रेडिट मेरे बाबा जी के ऊपर जाता है, उन्होंने किया। परिवार में दो बहनें थी, एक बहन की डेथ हो गई है। तो मैं सबसे छोटा हूँ, एक मेरा भाई है। तो फादर साहब है जो मेरे, वो बिजली बोर्ड में लाइनमैन थे। तो कबड्डी खेलते थे, 1970 और 60 की बात है। तब मतलब इनाम नहीं मिलते थे कबड्डी में, इतने कम मिलते थे। ज़्यादातर मतलब गेहूँ वगैरह ही मिलता था, पीपे वगैरह मिल जाते थे गेहूँ के, और गाय वगैरह दे देते थे। उनकी 2003 में डेथ हो गई। अगर उनकी डेथ ना होती, जब उनकी डेथ हुई थी तो मेरी उम्र तकरीबन 15 का साल थी। अगर उनकी डेथ ना होती तो शायद मैं आज ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ना बनाता, तो शायद मैं कबड्डी में ही होता। तो अभी आपने अभी कितने प्रतियोगिताएं हिस्सा ले चुके हैं, क्योंकि आपका मेडल तो जुड़ी लगी हुई है? इसके साथ साथ में मैं मास्टर गेम खेलता हूँ, वो 30 के बाद शुरू होती है। तो उस वो मास्टर गेम जब मैंने शुरू करी तब मैंने 2021 या 22 में की शुरू। उसमें मैंने क्या किया, उसमें जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, हैमर थ्रो, ये 4-5 गेम मैं करता हूँ, रेगुलर करता हूँ। उसमें मैंने 27 मेडल जीते हैं। जो मान साहब ने 3 साल पहले शुरू किया, खेड मेला शुरू कर रखा है जो मान साहब ने, उसमें मेरे लगातार 3 मेडल है। एक डिस्कस थ्रो में और 2 बार मेरा जैवलिन में आया। तो कहने का मतलब कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो चलो बना दिया है, उसके साथ साथ मैं एथलेटिक गेम भी करता हूँ। इसके अलावा जो आप इतना प्रैक्टिस करते हैं, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, ये सब सोचा कहाँ से आपने? देखो जो मैंने जो कान से उठाया वो तो मैं 2018 में किला रायपुर गया था अपने दोस्त के साथ, राजपाल के साथ। तो वहाँ गया था, मतलब वहाँ कोई व्यक्ति 2 कान से उठा रहा था वेट। तो एक कान में उसके क्लम्प मैं टाइट कर रहा था। जब मैंने टाइट किया तो मैंने देखा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो एक कान से उठा दूंगा ये। इसने 50 उठाया, मैं इससे ज़्यादा उठा दूंगा। चलो राजपाल जी ने पहले मुझे थोड़ा सा टोका कि मिके यही चीज़ रहने दे यार, मत कर यार, डेंजर है ये। तो मैंने राजपाल को बोला भी कोई बात नहीं राजपाल, घबरा मत, जो भी करेंगे सेफ्टी की तो करके करें, अपनी सेफ्टी रखेंगे फिर करेंगे। तो 2018 में मैंने राजपाल ने मेरी मदद करी। उन्होंने ये कलम पे जो वो सारा बनाया, बनाकर तैयार कर दिया। और 2018 में ही 20 किलो से लेकर 90 किलो उठा दिया था। तो ये जो प्रक्रिया की, ये हमने अलग से की, बंद कमरे में की, किसी के सामने नहीं की। जब इस चीज़ में वो परफेक्ट हो गया उठाने में, तो फिर मीडिया के सामने हम 2018 में आ गए थे। वो जो एक युवा है, उनको क्या आप कहना चाहेंगे, जो शौकीन है खेलों में आने के लिए? युवा को देखो जी, मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर हो सके तो डाइट है जो नेचुरल डाइट खाएंगे तो अच्छा रहेंगे। सप्लीमेंट जो रेकमेंड करते हैं, मैं नहीं चाहता कि वो सप्लीमेंट छोड़ दें या ना खाएं।
जो बंदा भी सप्लीमेंट रेकमेंड करता है या खाता है, कई बंदे को शूट कर जाता है, कईयों को नहीं करता है। सो कहने का मतलब नेचुरल डाइट खाओगे तो अच्छा जाओगे, लंबा जाओगे। मेरे हिसाब से तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, देसी घी अगर खाएंगे तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। वो पाँव से लेकर सिर तक कोई भी प्रॉब्लम हमें ठीक कर देता है। हमारे लोगों में क्या है, हमारे लोगों में फास्ट फूड खा खा कर ना बॉडी के अंदर खुश्की पड़ गई है, तो प्रॉपर किसी का पेट साफ नहीं होता। पुराने बुजुर्ग कहते हैं भी अगर पेट साफ होगा तो कोई बीमारी नहीं होगी, वो चीज़ को कोई फॉलो नहीं करता। सो सभी लोग फास्ट फूड के पीछे पड़े हुए हैं। घी किसी को शूट ही नहीं करता, क्योंकि अंदर इतनी खुश्की बढ़ गई है। अगर कोई घी खाता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी का क्या, मतलब कहने का मतलब अगर जब घी खाओगे शुरू में तो प्रॉब्लम आएगी, धीरे धीरे वो सेट हो जाएगा बॉडी में, और ऐसा सेट होगा फिर उस बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी।